आज हम देखेंगे 8th क्लास लेसन 4 द नर्मदा द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। हम नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ेंगे जो कि मध्य प्रदेश की क्या है, जीवन रेखा। लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा। I am the river Narmada. I am proud that I flow in India where a river is considered as a living being, and even more than that, people worship rivers as goddess here. नर्मदा रिवर कहती है कि मैं नर्मदा हूँ और मुझे अपने ऊपर गर्व है कि मैं इंडिया में बहती हूँ। फ्लो मतलब बहना। जहाँ पर जो नदी है उसको देवी माना जाता है और एक जीवन मतलब कि लिविंग बीइंग माना जाता है। जहाँ पे नदियों की पूजा की जाती है देवी के रूप में। There are many holy rivers in India such as the Ganga, the Yamuna, the Brahmaputra, the Sindhu, the Godavari, the Kaveri, the Krishna, the Satluj, etc. वो कहती है यहाँ पर और भी रिवर हैं, पवित्र नदियां हैं जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और भी। People take scared bath in them and feel purified. I am the longest river in the Madhya Pradesh. People call me माँ नर्मदा। नर्मदा कहती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो नदियों में स्नान करके अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं और मैं मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी हूँ। यहाँ लोग मुझे माँ नर्मदा के नाम से जानते हैं। I too look after them like a mother. I have abundant water throughout the year. I irrigate a major part of the state. और वो कहती है कि मैं यहाँ पर मुझे एक माँ के रूप में मानते हैं लोग। I flow between the Vindhyachal and the Satpura mountains. People call me the lifeline of मध्य प्रदेश। वो कहती है कि मैं विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन्स में फ्लो करती हूँ, मतलब पहाड़ों के बीच में बहती हूँ और यहाँ पर लोग जो मुझे कहते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। My name has a very specific meaning, Narmada, who soothes and give pleasure to all. People call me रेवा also. वो कहती है कि जो मेरा नाम है नर्मदा उसका बहुत महत्वपूर्ण मतलब है और यहाँ के लोग जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और उसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, रेवा। I flow westwards and pour my water into the Gulf of Khambhat. मतलब वो कहती है कि यहाँ जो मेरा पानी है वो खंबात की खाड़ियों में भी बहता है। All other rivers flow southwards or eastwards. I have been depicted in many holy books. The Narmada Puran deals about me in detail. और वो कहती है कि मेरे बारे में और भी होली बुक्स हैं जैसे कि मेरे बारे में डिटेल में दिया है। कौन सी बुक में? नर्मदा पुराण में। You will surely like to listen to the story of my birth. Once Lord Shiva was lost in meditation at the Maikal ranges. He spent many years in meditation. He, peaceful and soothing splendor, took the form of a beautiful maiden, and it was me. वो कहती है कि एक बार क्या होता है, जो भगवान शिव होते हैं वो मैकाल के पर्वत श्रेणी में अपना ध्यान में लीन रहते हैं और वो कई जो साल रहते हैं वहां पर बिता देते हैं। और उस जगह में जहां वो अपना ध्यान लीन करते हैं उस जगह में एक वो जो जगह रहती है वो एक लड़की के रूप में बदल जाती है और वो लड़की मैं हूं यानी नर्मदा है। I bowed before Lord Shiva. He opened his eyes, telling me that my creation has inspired a sweet tenderness in his heart.
Hence I was called Narmada. I asked him, O Father, allow me to remain a maiden and flow free and pure forever. Let it be so, my child, he said, and closed his eyes. Since then, I have been flowing through the mountains, valley and plains, playing, dancing, jumping, zigzagging and gurgling in such a manner that the people who come on my bank and see me feel that their sins have been absolved and their hearts are filled with purity and serenity like that of mine. वो कहती है कि फिर जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप फिर उसने भगवान शिव के सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं हमेशा एक कुंवारी लड़की के रूप में रहना चाहती हूँ और मैं इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। तो तब से फिर शिव जी ने उसकी इच्छा पूर्ण की और तब से ही वो पहाड़ों और वैलीज एंड रेन्स प्लेइंग मतलब कि वैलीज के बीच में बहती रहती है। I have my origin from the Maikal ranges. There is a beautiful place named Amarkantak near Anupur. At Amarkantak, I appear from a source Kund named after me, the Narmada Kund. From his Kund, I flow in the form of a narrow stream and reach a place where once stood the ashram of Kapil Muni. Here people call me दूध धारा as I look like milk. फिर वो कहती है कि वह अमरकंटक में एक कुंड से निकलती है और वहां से जो कि वो अमरकंटक एक ब्यूटीफुल प्लेस के नाम से जाना जाता है और इस कुंड में वह एक संकरी धारा के रूप में बहती है और उस जगह को जाती है जहां पर कभी कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। यहाँ पर नर्मदा को दूध धारा के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि वह बिल्कुल दूध की तरह दिखाई देती है। फ्रॉम अमरकंटक आई पास थ्रू डिंडोरी, मंडला एंड जबलपुर एट भेरा घाट Jabalpur, my banks and adorned with marble rocks. People from all over the world come to see me gracefully flowing through the rocks. अब वो कहती है कि अमरकंटक से वह दिंडोरी, मंडला और जबलपुर से होते हुए गुजरती है। जबलपुर के भेड़ा घाट पर इसके किनारे रंग बिरंगे संगमरमरी चट्टानों से सजे हैं। भेड़ा घाट के ठीक ऊपर वह एक सुंदर जलप्रपात बनाती है। Those who watch my beauty in the light of the full moon forget everything and feel as if they have reached the abode of God. Just above Bera Ghat, I make a wonderful waterfall. The following waterfall splits into fine droplets in the air and appear like fog everywhere. It is known as the Dudhara Jalprapat. From this place I flow through Narsinghpur, Raisen, Hoshangabad, Handia and Nimawar. At Nimawar, it is half of my journey to the sea. Sethani Ghat at the Hoshangabad and the Ghat of Maheshwar, where stands the humble place of Devi Ahilyabai, have their own importance and scenic beauty. Omkareshwar is another very important place of pilgrimage on my bank. अब वो कहती है कि भेड़ा घाट के ठीक ऊपर वह एक सुंदर जलप्रपात बनाती है
यहाँ से वह नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हंदिया और नेमावर से होकर बहती है। होशंगाबाद में सेठानी घाट और महेश्वर घाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा के ही किनारे पर स्थित ओमकारेश्वर एक तीर्थ स्थल है जिसकी अलग इम्पोर्टेंस है। Besides this, people have built big dams across me. The dam at Punasa in Khandwa district in Indira Sagar Dam, and the one in Gujarat is the Sardar Sarovar Dam. Thus, people will be able to get more water from irrigation and generate electricity also. I must mention here that a big city like Indore gets its water supply from me through I am quite far off from the city. नर्मदा कहती है, लोगों ने नर्मदा नदी पर बड़े बड़े बांध बनाए हैं। ये बांध इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध। गुजरात में नर्मदा अपना आकार काफी बड़ा कर लेती है। इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ बहुत सी नदियां उसमें मिल जाती हैं। यहाँ से अमरकंटक होती हुई वह अमरकंटक होती हुई 1310 किलोमीटर की अपनी यात्रा जारी करती है। Crossing Dhar and Barwani, I enter Maharashtra and then Gujarat. In Gujarat, a number of rivers join me and I take on an enormous shape. From here, I continue my journey to meet the Gulf of Khambat and Vimleshwar. Thus from Amarkantak to Vimleshwar, I travel 10 kilometers in all. Thousands of people, men and women, young and old, undertake pilgrimage all along my length and around it. They call it the Holy Parikrama and consider it as a great pilgrimage and a religious achievement of their life. वो कहती है कि गुजरात में अपना आकार काफी बड़ा कर लेती है। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ बहुत सी नदियां उसमें मिल जाती हैं। यहाँ से अमरकंटक होती हुई 1310 किलोमीटर की अपनी यात्रा जारी रखते हुए वह विमलेश्वर में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज वर्ड पावर में फर्स्ट है मेक वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स एज गिवन इन द एग्जाम्पल। हमको सफिक्स बनाना है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट है ग्रेसफुल, उसका दिया है ग्रेसफुली। ऐसे ही आपको फ्यूरियस और एनेक्जियस का बनाना है। तो फ्यूरियस का क्या हो जाएगा फ्यूरियसली। सेकंड है प्योर, प्योर का दिया है प्यूरिटी। फिर इसमें दिया है सेरेन और रेयर, इसमें टी वाई लगाना है। फर्स्ट वाले में आपको एल वाई से बनाना है, सेकंड में टी वाई से। मेडिटेट, तो इसका क्या हुआ है मेडिटेशन, यानी TION लगाया है। नेक्स्ट है क्रिएट, उसका हो जाएगा क्रिएशन। जनरेट जनरेशन। कंसिडर कंसिडरेशन। स्पेसिफिक का है स्पेसिफिकेशन। लिमिट का है लिमिटेशन। तो ये आप लोग खुद कर लेंगे होमवर्क। फिर बी वाला है रीअरेंज द जम्बल लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स। फर्स्ट दिया है DORNA, इसका हो जाएगा एडॉर्न। ए दिया है DORN। फिर दिया है सेकेंड SLEBS, इसका होगा ब्लेस।
HYLO, H से बनाना है तो HOLY, होली। फिर दिया है WOB, इसका होगा बो, BOW। GIRION, इसका होगा ओरिजिन, ORIGIN। क्वेश्चन आंसर में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आपको ये डॉक्यूमेंट के थ्रू मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन आपको नहीं करना है, फिर सिक्स्थ वाला करना है, सेवेंथ करना और लास्ट वाला नहीं करना है। अब इसमें बी है मैच दी कॉलम्स, ये आप लोग खुद करेंगे अपनी अपनी कॉपी में। फिर नेक्स्ट है नाउ फिल इन दी ब्लैंक्स विद बिटवीन और अमंग। फर्स्ट दिया है वी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश द चिल्ड्रंस, तो यहां क्या आ जाएगा, वी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रंस। सेकेंड है रानी इज स्टैंडिंग डैश श्रेया एंड सोनल, रानी बैठी हुई थी कहां पर, श्रेया और सोनल के बीच में, तो यहां आ जाएगा बिटवीन। अब आगे के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन आंसर आप डॉक्यूमेंट से कर लेंगे, आपको दे दिया जाएगा उसके लिंक। यह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।